بلوچستان کے سمندری حدود میں ٹرالروں کے ذریعے ماہی گیری پر پابندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے گوادر میں محنتی ماہی گیروں کے جائز مطالبات کا نوٹس دے لیا۔ مچھلی کے غیر قانونی شکار پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ گوادر تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان کا خیر مقدم۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ معاملات عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی تفصیلات منظر عام پر لائے۔ بلوچستان کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی بلوچستان کے لیے 700 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف نے اکاؤنٹس کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کے اکاؤنٹس کی آڈٹ تفصیلات جلد عوام کے سامنے لائے۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب۔ مقامی حکومتوں کے نظام کے بغیر جمہوریت نامکمل۔ سندھ میں نئے بلدیاتی بل کے خلاف اہم سیاسی جماعتیں متحرک۔ سندھ میں مقامی حکومت کے نظام کی درستگی اور بااختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ بل کے خلاف سینیٹ اور قومی اسمبلی سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا آل پارٹی سٹیک ہولڈرز کانفرنس سے خطاب۔ شہداء ہمارا فخر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا 6 دسمبر کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر راجہ عزیز شان جہاں سے میجر محمد عرفان اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ پرامن خوشحال افغانستان، پاکستان کا عزم۔ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کانفرنس کا بنیادی مقصد افغانستان کی بہتری اور خوشحالی پر غور کرنا ہے۔ بعض قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر بھارتی بربریت جاری۔ دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران پلوامہ میں ایک نوجوان شہید، علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی نسل کشی کی شدید مذمت۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری۔ مزید $1,92,00,000 افغان مرکزی بینک کو موصول۔ رقم خوراک، صحت اور تعلیم کے شعبے پر خرچ کی جائے گی۔ روس کا یوکرین پر حملہ، نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ چین کی بڑھتی اقتصادی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آخری موقع ہے۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 کے وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ۔ امریکی تاریخ کے بدترین طوفانی بگولے، 5 ریاستوں میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ متعدد افراد اب بھی لاپتہ۔ وسیع پیمانے پر املاک کو نقصان۔ بگولے کی راہ میں آنے والی ہر چیز تہس نہس۔ حکومت متاثرہ علاقوں میں مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، بعض علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان۔ پی ٹی وی نیوز شیخوپورہ کے 8 سالہ معذور بچے سبحان کی آواز بن گیا۔ جسمانی معذوری کے باوجود چھوٹی بہن کو سائیکل پر سکول لانے لے جانے کی رپورٹ نشر ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ علاج معالجے، تعلیمی اخراجات اور خاندان کی کفالت کا اعلان۔
लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स का इंतखाब। तमाम 6 फ्रेंचाइजेस ने 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तरतीब दिए। तकरीब PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी 2022 से होगा। मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। T20 सीरीज का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के गरीब तरीन तबके को तरक्की के धारे में शामिल करने का वाज़ेह विजन रखते हैं। यही वजह है कि वो उनके मसाइल पर फौरी इक़दामात उठाते हैं। उन्होंने न सिर्फ गवादर के माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लिया, बल्कि ट्रॉलर्स के जरिए मछली के गैर कानूनी शिकार पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। मज़ीद तफसील बताएंगे नवीद असर। बलूचिस्तान के साहली शहर ग्वादर में पोर्ट रोड पर माहीगीरों का धरना 15 नवंबर से जारी है। धरने में मुकामी माहीगीरों, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग शरीक हैं। धरने के दौरान खवातीन और मर्दों की रैलियां भी निकाली गईं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ग्वादर को हक दो तहरीक के मुतालबात में बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में ट्रालरों के जरिए माहीगीरों पर पाबंदी बड़ा मुतालबा है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने तहरीक के 4 मुतालबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। ताहम मौलाना हदायत और उनके साथियों का मौकफ है कि अमली इकदामात तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हदायत की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने ग्वादर के माहीगीरों के जायज मुतालबात का नोटिस लेते हुए कहा है कि वो इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रॉलर्स के जरिए मछली के गैर कानूनी शिकार पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्वादर तहरीक के रहनुमा मौलाना हदायतुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से माहीगीरों के जायज मुतालबात के नोटिस लेने का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हक दो तहरीक के मुतालबात पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया है, इसका वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया था 19 डिमांड से, जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुई। हमने पहले दिन से ही एक्शन लिया है। आप उनकी तकारीर सुने, वो खुद कह रहे हैं कि उसमें कमी आई है। इसमें वो एक बहुत बड़ा मसला था। वो एक माफिया होता है, जैसे यहाँ एक करप्शन का भी माफिया होता है। मामले पर अपने ट्वीट में मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा गरीब के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने नवंबर के आखिरी हफ्ते में वजारत दाखिला को हदायत दी थी कि ग्वादर से मुंसलिक गैर कानूनी माहीगीरों के मसले को फौरी हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। अगले 3 दिन में इस कमेटी की सिफारिशात जमा होंगी और इस मसले को हल किया जाएगा। किसी सूरत गरीब का इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। इस कमेटी में तमाम इदारों के लोग शामिल हैं
تاکہ ایک دور رس اور جامع حل نکالا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو نے وزیر اعظم کی جانب سے گوادر تحریک کے مطالبات کا نوٹس لینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گوادر تحریک کے مطالبات انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہیں اور پہلے سے ہی موجودہ حکومت کی پالیسی میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری چیک پوسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ صوبائی محکمے غیر قانونی ماہی گیری اور ٹرالنگ کی روک تھام یقینی بنا رہے ہیں۔ محکمے اور ادارے غیر قانونی ٹرالنگ کے سدباب کے لیے مزید مربوط اور مؤثر اقدامات کریں گے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ معاملات عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ نون لیگ کے ایک بھی ڈونر کا فنڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے فنڈ اکاؤنٹس میں کی جانے والی فنڈنگ بھی مبہم ہے۔ لاہور میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی بلوچستان کے لیے ملکی تاریخ کا بڑا ترقیاتی پیکج دیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، فورن فنڈنگ کیس میں پیش رفت کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا استحکام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کے شفاف نظام سے منسلک ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ اکاؤنٹس منظر عام پر لائے جائیں۔ الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور جو تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں نے ایسا بلدیاتی نظام وضع کیا جس سے اختیارات حقیقی طور پر نچلی سطح پر منتقل ہوں گے۔ پہلے ہی سال ہم نے بلوچستان میں صدرن بلوچستان میں 700 ارب روپے کا پیکج دیا، اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پہلے دن سے ہی وزیر اعظم کوشاں ہیں۔ پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ الیکشن 100% ای وی ایم کے اوپر ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے صرف میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی آر ایف پیز، آپ اپنی جو جس قسم کی مشین آپ چاہتے ہیں آپ اس کا ٹینڈر کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت کے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں، تاہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے۔ یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ جن پارٹیز کے آپ بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آئیں اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت کے سنجیدہ اقدامات سے مہنگائی کے رجحان میں کمی آئی، کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا اور عوام کو صحت کارڈ کی صورت میں علاج معالجے کی معیاری سہولتیں میسر آئیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ میں نئے بلدیاتی بل کے خلاف اہم سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ سندھ میں مقامی حکومت کے نظام کی درستگی اور با اختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے تحریک چلائیں گے اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سینٹ اور اسمبلی سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ کانفرنس کا احوال بتائیں گے کراچی سے سہیل جمالی۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی کی میزبانی میں آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس میں ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، کاف لیگ، پاکستان عوامی تحریک اور دوسری سیاسی و مذہبی جماعتوں نے شرکت کی۔ وہیں ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، تاجروں اور صنعت کاروں کی تنظیموں اور این جی اوز کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد اور اقدامات کریں گے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ جمہوری نظام نامکمل ہے جب تک مقامی حکومت کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا۔ ذمہ داری لگائی گئی صوبوں کی، جو آئین کے اندر اختیار ہونا چاہیے، کراچی کا، لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، نوشہر و فیروز کا، سکھر کا، حیدرآباد کا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے انتظار کرنے کو اب تیار نہیں ہیں۔ جو بھی
जो भी आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास इस नज़्ब-ओ-लैन तक पहुंचने के लिए मौके मौजूद हैं, हम सबको इस्तेमाल करेंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कवायद के खिलाफ ये बिल मंजूर किया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून में मकामी हुकूमत के इख्तियार भी सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं, जो आमिराना तर्ज अमल है। इस कानून में कराची समेत सिंध के तमाम शहरों की मकामी हुकूमतों को बेख्तियार किया गया है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान देखना चाहता है और इस मकसद के लिए 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद अफ़ग़ानिस्तान की बेहतरी और खुशहाली पर गौर करना है। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम की 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहुत सारी क़ुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन उनके ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सजादा नशीं व वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि औलिया का फैज़ान सदियों से जारी व सारी है और हर दौर में नामवर हस्तियां सोफिया के आस्थानों पर हाजिरी देती रहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बाज़ क़ुव्वतें पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती। कौम को ऐसी क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको इस नाचीज ने दावत दी है और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनको मद्दू किया है कि हम मिलकर बसीयत उम्मा के अफगानिस्तान के जो हमारे निहत्ते भाई बैठे हैं, उनकी मदद के लिए हम एक नुकाते एजेंडे पे गौर व फिक्र करें, ताकि अफगानिस्तान में अमन हो सके, वहाँ इस्तेहकाम हो सके, वहाँ खुशहाली लौट सके और वहाँ के अमन व इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो खित्ते की कनेक्टिविटी का एजेंडा है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो एनर्जी का बहरान है, वो खत्म हो सके। उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि औलिया अल्लाह की तालीमात एक खुशहाल माशरे के क़याम के लिए हमेशा से मशले राह रही हैं। उर्स के तीसरे दिन भी हजारों अक़ीदतमंदों ने हज़रत शाह रुकन दीन आलम के मिज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर राजा ज़ीशान जहांजेब और मेजर मोहम्मद इरफान के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। सदर मुमलिकत ने 27 नवंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवानों के अहल खाना से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने अहल खाना से अफसोस का इजहार किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। सदर मुमलिकत ने लांस नायक आरिफ और नायक रहमान के अहल खाना और 8 नवंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही गफूर जान के अहल खाना से भी बातचीत की। सदर मुमलिकत ने शोहदा को अजीम कुर्बानी और कौम के लिए खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में पुलवामा के इलाके बारागाम तराल में महासरे और तलाशी के दौरान एक और नौजवान को मावराए अदालत शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाई के बाद काबिज हुक्काम ने इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से कश्मीर में मुसलमानों की बढ़ती हुई नस्लकुशी की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान ने कहा कि मोदी हुकूमत कत्लो गारत के अलावा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए पंडितों के नाम पर गैर रियासती बाशिंदों के लिए गैर कानूनी तामीरात कर रही है। हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत के तहत भारत में आज़ादी इजहार को बुरी तरह कुचला जा रहा है, जहां साफियों और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए खौफ और दहशत का माहौल कायम किया गया है। पुलिस ने भारतीय जनरल बिपिन रावत की फजाई हादसे में हलाकत पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने पर मुसलमान सोशल मीडिया सारिफ फिरोज देवान को काले कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम है। इस्लामी ताउन तंजीम के आज तक कितने इजलास हुए और पाकिस्तान ने कितने इजलासों की मेज़बानी की, इस बारे में तफसील जानते हैं ज़ीशान भट्टी से। 1970 में जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। इसी में जद्दा ही में तंजीम के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम का फ़ैसला किया गया था।
OIC میں پالیسی ترتیب دینے میں سب سے اہم کام رکن ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہے، جو ہر 3 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال اور غور کے لیے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ 1969 سے 2019 تک 14 اسلامی سربراہ کانفرنسز منعقد ہوئی تھیں اور 7 ہنگامی سربراہ اجلاس اسلامی دنیا کے مختلف ممالک مراکش، سعودی عرب، انڈونیشیا، کویت، مصر، پاکستان اور ترکی کے دارالحکومتوں میں طلب کیے گئے تھے۔ OIC کے قیام سے اب تک اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 47 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ پاکستان 1970، 1980، 1993 اور 2007 میں وزرائے خارجہ کونسل کے 4 اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ وزرائے خارجہ کے 14 غیر معمولی اجلاس ہو چکے ہیں اور 19 دسمبر کو پاکستان 17ویں غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان نے اس سے قبل افغانستان پر 1980 میں OIC کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کی تھی۔ OIC کے 57 ممبر ملک ہیں۔ 1969 میں جب یہ قائم ہوئی تھی تو اس کے بنیادی ارکان میں افغانستان، الجزائر، چاڈ، مصر، جمہوریہ گنی، انڈونیشیا، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، ملائیشیا، مالی، ماریتانیہ، مراکش، نائجیریا، پاکستان، ترکی، فلسطین، یمن، سعودی عرب، سینیگال، سوڈان، صومالیہ اور تیونس شامل ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ افغانستان ایک طویل اور خطرناک طوفانی دور سے گزر رہا ہے۔ آج بھی معاشی بحران کے باعث جس مقام پر کھڑا ہے، اگر عالمی برادری نے اس کا ادراک نہ کیا تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ نوشہرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد حکومتی ترجیحات میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو پوری طرح سمجھیں۔ رحمت العالمین اتھارٹی کا مقصد باہمی تحقیق کے ذریعے سنت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا اور نوجوانوں کو اسلامی تشخص، اقدار، ثقافت سے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں آج مزید $1 کروڑ 92 لاکھ افغان مرکزی بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ بینک حکام کے مطابق اس سے ملک میں بینکنگ سسٹم کو استحکام حاصل ہوگا اور لوکل کرنسی مستحکم ہوگی۔ کابل میں افغان عبوری حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں افغانی کرنسی کو مستحکم کیا جائے۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ رقم خوراک، صحت اور تعلیم کے شعبے پر خرچ کی جائے گی۔ ادھر طالبان حکومت نے واشنگٹن کی جانب سے افغان شہریوں کو ذاتی رقوم اپنے ملک منتقل کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے $10 ارب سے زائد کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اور طالبان حکومت بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں امداد کی بجائے غصب کی گئی دولت واپس کی جائے۔ ناظرین، دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 نے روس، چین اور ایران کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں 2 روزہ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس کو خبردار کیا کہ اگر اس نے یوکرائن پر فوجی مداخلت کی تو اس سے سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹرس نے کہا کہ ماسکو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یوکرین پر حملہ نیٹو پر حملہ سمجھا جائے گا۔ امریکی انٹیلیجنس رائے کے مطابق روس اگلے 2 ماہ کے دوران یوکرین پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے 2.25 لاکھ فوجی تیار ہیں۔ دوسری جانب کرملن کا کہنا ہے کہ مغرب کو روسوفوبیا ہو گیا ہے اور ہمارا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں۔ G7 اجلاس میں عالمی سطح پر چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اقتصادی طاقت کو مغرب کی اجارہ داری کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ کینٹکی، مسوری اور الینوائس سمیت امریکہ کی 5 ریاستوں میں گزشتہ شب آنے والے طوفانی بگولوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اب تک 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ یہ بگولا ہزاروں عمارتوں، گاڑیوں اور درختوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے گیا۔ خدشہ ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سروں سے چھتیں اڑ جانے کے بعد ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ راستے بند ہو جانے کے باعث امدادی کارروائیوں میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ شب 5 ریاستوں میں 19 بگولے ریکارڈ کیے گئے جنہوں نے وسیع پیمانے پر املاک اور انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچایا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ بگولے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وفاقی ہنگامی اعلامیے پر بھی دستخط کیے گئے جس کے تحت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست کینٹکی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेट लाइफ को पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को 16 लाख रुपए अदा करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने वफाकी मोहतसिब के फैसलों के खिलाफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की 4 अलग अलग अपीलें मुस्तरद कर दी। वफाकी मोहतसिब ने वफात पाने वाले लाइफ पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को इंश्योरेंस की पूरी रकम अदा करने का हुक्म दिया था, जिस पर स्टेट लाइफ ने पॉलिसी लेते वक्त बीमारी छुपाने पर रकम अदा करने से इनकार कर दिया था। पॉलिसी होल्डर्स ने स्टेट लाइफ के इस फैसले के खिलाफ वफाकी मोहतसिब से रुजू किया, जिस पर वफाकी मोहतसिब की जानिब से स्टेट लाइफ को पॉलिसी होल्डर्स खानदानों को पूरी रकम अदा करने की हिदायत की गई। हक़ाइक़ की रोशनी में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बद इंतज़ामी की मरतकब हुई। इस ज़मन में मज़ीद कहा गया कि मोहतसिब के फैसले के खिलाफ स्टेट लाइफ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इस हवाले से 30 दिन में फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। और नाज़रीन, अब कुछ बात करें PSL सीज़न 7 की। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 की ड्राफ्टिंग तकरीब हुई, जिसमें फ्रेंचाइज के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने शिरकत की। फ्रेंचाइजीज ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब किया। तफसील जानते हैं मोहम्मद यूनस से। PSL 7 के लिए मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स का हुआ इंतखाब। हर फ्रेंचाइजर ने कोशिश की कि इन्हें मिल जाए वो खिलाड़ी जो इन्हें आने वाले सीजन का चैंपियन बना सके। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में होने वाली तकरीब में फ्रेंचाइजर्स ने अपनी अपनी बारी में खिलाड़ियों को मुंतखब किया। प्लाटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोलन मंदरू, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जेसन रॉय और पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह जज़ई का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मर्चेंट डिलेइंग, मुल्तान सुल्तान्स ने ओडेन स्मिथ, कराची किंग्स ने लेविस ग्रेगरी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जेम्स फाल्कनर को टीम में शामिल किया। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक, फिल साल्ट और हैरी ब्रूक का इंतखाब किया, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने उस्मान कादिर को पिक किया। फ्रेंचाइजीज ने सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरीज में भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया। इस मौके पर चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि PSL को वक्त के साथ साथ बड़े से बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। हम HBL PSL को हर साल बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। हम इस वक्त एक कम्पिटिटिव रेस में हैं जहाँ पे सारी दुनिया में लीग्स चल रही हैं। सो PSL, HBL, PSL को हम किस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, वो तभी लेके जाएंगे जब इसमें और ज़्यादा पैसा लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, और हम ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बन के सामने आएंगे। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी ने रिटेंशन का पूरा कोटा इस्तेमाल किया और 8-8 खिलाड़ियों को बरकरार रखे, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 7-7 खिलाड़ियों को रिटेन किया। ड्राफ्टिंग के साथ ही तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने 18-18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड्स तरतीब दिए। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी 2022 से होगा। मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि औलिया की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात पर अमल से ही हम आखिरत में फलाह पा सकते हैं और माशरे में अमन भाईचारे को फ़रोग दे सकते हैं। मुरागोरी में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अंबिया कराम के बाद औलिया कराम ने इस्लाम की तबलीग व तरवीज के लिए बहुत काम किया है और भटके हुए लोगों की इस्लाह करके इस्लाम की रोशनी की तरफ राग़िब किया है। उन्होंने कहा कि औलिया कराम अंबिया के वारिसीन हैं। औलिया कराम ने अपने आमाल, अखलाक व अफकार से लोगों के दिलों में घर करके उनके दिलों को अल्लाह ताला के मोहब्बत से रोशनास किया है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में शरीफ खानदार और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं और अवाम का तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। 3 दहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले अपना बोया काट रहे हैं। एक बयान में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे के बजाय आकाओं की करप्शन का हिसाब लें और बताएं कि अरबों की करप्शन करके दवाई लेने बैरून मुल्क जाने वाले कब वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धेले की करप्शन की गर्दान वाले FIA को 25 अरब का जवाब दें। शहबाज शरीफ का हर मंसूबा करप्शन और किकबैक्स के लिए था। ज़ाती असासों में 70 गुना इजाफा करने वाले के दरबारी उन्हें फरिश्ता साबित करने में लगे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की ज़रई, सनती, कारोबारी, बरामदी, माशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशां है और इस ज़मन में तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं।
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत जामे इस्लाहात के जरिए बरामदात बढ़ाने और टैक्सों की वसूलियों में इजाफे पर संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर से पंजाब में सेहत कार्ड जारी करने का काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद जनूबी एशिया में पाकिस्तान की बरामदात सबसे ज्यादा 35% रही, जबकि पिछले साल 2.5 अरब के रिफंड भी जारी किए गए। ज़राअत के बारे में उन्होंने बताया कि हुकूमत की पॉलिसियों से इस साल तमाम फसलों की पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में हमें कपास और शुगर दरामद नहीं करना पड़ेगी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाने की बदौलत मुनफरिद आइडियाज़ पर मबनी नई कंपनीज और स्टार्टअप्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। सरमाए की बाआसानी दस्तयाबी के हुकूमती इक़दामात से सिर्फ 2021 में स्टार्टअप्स के शोबे में $30 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे वो स्टार्टअप्स $300 मिलियन की सीड मनी यानी कि अपनी स्टार्टअप्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुके हैं, जिनके पास आइडियाज़ थे, जिनके पास सलाहियत मौजूद थी। 2018 में हमें एक्सपोर्ट्स मिली $850 मिलियन पर। पिछले साल हम उसे $2 अरब के ऊपर लेकर गए हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम उसे $3 अरब से ज़ायद जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम ई कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे जदीद शोबों के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा किया है। हमारा नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करते हैं। आइंदा चंद माह के अंदर आपका अपना जो है वो नेशनल इंक्यूबेटर जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो प्रमोट करेगा। उसमें मल्टीनेशनल्स भी आएंगी, जो यहाँ की हमारी अपनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी हम साथ लेके आएंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने के लिए की गई जामे इस्लाहात से मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 1,56,000 से तजावज़ कर गई है, जो 3 साल पहले 92,000 थी। 3 साल में नई रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद में 70% इजाफा कारोबार के लिए साजगार माहौल और सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर पुख्ता एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीन उल हक की हिदायत पर यूनिवर्सल सर्विस फंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वादी कुमराट, सवात के अहम सियाहती मकामात समेत मुल्क भर के 19 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए 11.5 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दे दी। चेयरमैन USF बोर्ड डॉक्टर सुहेल राजपूत का कहना था कि सवात, दीरबाला, एबटाबाद और मानसेरा के अहम सियाहती मकामात पर 2 अरब रुपए की लागत से ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। उनका कहना था कि USF बोर्ड ने यूनियन काउंसिल सतह तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी है। इन अजला में मजमूई तौर पर 1061 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। 19 दिसंबर को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। PTV के इलेक्शन सेल की तैयार करदा रिपोर्ट की तफसील साजिद अख्तर से। पेशावर की 2500 से जायद नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 4671 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 दिसंबर को पेशावर की 7 तहसीलों और 357 नेबरहुड और विलेज कौंसलों पर इंतखाबात होंगे, लेकिन सबकी नजरें पेशावर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए होने वाले इलेक्शन पर मरकूज हैं। इस नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 17 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ताहम कांटे का मुकाबला PTI के उम्मीदवार रिजवान बंगश, NP के उम्मीदवार शेर रहमान, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरबाब ज़रक खान, जुमात इस्लामी के उम्मीदवार बहरुल्ला एडवोकेट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार जुबैर अली के दरमियान मुतवक्के हैं। पेशावर की दीगर 6 तहसीलों पर भी सियासी जुमातों ने तगड़े उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। तहसील बड़ाबेरा की नशिस्त 9 उम्मीदवार, तहसील हसन खेल की नशिस्त पर 7, तहसील पिश्तखरा की नशिस्त पर 10, तहसील चमकनी की नशिस्त पर 9, जबकि तहसील मतरा और तहसील शाह आलम की नशिस्तों पर 12-12 उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। जिला पेशावर में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 19 लाख से जायद हैं, जिनमें 10,78,000 मर्द और 8,40,000 खवातीन शामिल हैं। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1248 पोलिंग स्टेशन और 4,400 से जायद पोलिंग बूथ बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिले में नेबरहुड और विलेज कौंसिल की सतह पर 427 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 2013 के बाद होने वाले आम इंतखाबात हो या बल्दिया इलेक्शन, दूसरी सियासी जुमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर से वाज़ेह कामयाबी मिली है। अब देखना यह है कि इस बार भी
पीटीआई क्लीन स्वीप कर सकेगी या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। Pakistan is a very climate vulnerable country, and within Pakistan, the area which is most vulnerable are the northern areas and the northern part of KP. GLOF 2 project has been started in that area to deal with the issue of the melting glaciers, because they are melting fast and they have serious repercussions for the communities and the population in the downstream area. Climate change is a serious threat for Pakistan, and our Prime Minister realizes that, and so he's put it in his top 4 agendas. And it is very clear that Pakistan's future is linked to dealing with this very huge issue. नाजरीन, पीटीवी न्यूज़ शेखुपुरा के मेहनतकश मोहम्मद सिद्दीक के 8 साला माजूर बच्चे सुभान की आवाज़ बन गया। जिस्मानी माजूरी के बावजूद छोटी बहन को साइकिल पर स्कूल लेकर आने और जाने की रिपोर्ट ऑनर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और सुभान के इलाज मुआलजे, तालीम अखराजात और उसके ख़ानदान की कफालत पंजाब हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले ली है। मज़ीद तफसील बताएंगे इस्लाम काजी। बहन जैसे अजीम रिश्ते से इसार और मोहब्बत की मिसाल बनने वाले टांग, बाजू और दीगर जिस्मानी माजूरी के शिकार 8 साला सुभान की साइकिल पर अपनी बहन को स्कूल लेकर आने जाने के बारे में पीटीवी न्यूज पर जैसे ही रिपोर्ट नशर हुई तो फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब समेत कई मुखय्यर हजरात ने इसका नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ज़िले इंतजामिया शेखुपुरा के अफसरान के साथ सुभान के दूर दराज गाँव पहुंचे और वज़ीर आला पंजाब की जानब से नेक ख्वाहिशात के पैगाम के साथ सुभान की तालीम, इलाजो मालजे के खराजात पंजाब हुकूमत की तरफ से अदा करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब जिस तरह उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और उनको पूरा एहसास इस बात का, इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत की तरफ से इसका इलाज भी करवाया जाएगा और कोई इनकी जो माली मामलत के सिलसिले में भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। इस बच्चे का जो माशाल्लाह जो जज्बा है, इससे हमने मतलब यहाँ पे बात भी की है और ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला जो इसका ये अज़म है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। इंशाअल्लाह ताला इस फैमिली की जो है अब इंशाअल्लाह ताला हम कफालत हम खुद करेंगे। सुभान की नन्ही बहन और उसके वालिदैन ने उनकी आवाज़ बनने पर पीटीवी न्यूज़ और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई कल आएगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत खुश होंगी। वज़ीर आला ने नोटिस लिया है, असी बड़े शुक्रगुजार हैं। नंदा शौक है ते नाले मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहना, अपने जैसे बच्चों का इलाज करना चाहना। पंजाब हुकूमत की जानब से सुभान के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी, इलाजो मुआलजे और माली मावनत उनकी जिंदगी के सफर की मुश्किलात के खात्मे और आसानियों का सबब बनेगी। सुभान और उनके अहले खाना पुर उम्मीद है कि अब उनके बच्चे का इलाज भी होगा और उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब भी शर्मिंदा तबीर जरूर होगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गाँव सोहल कलां, जिला शेखुपुरा। एहलिया सदर मुमलिकत बेगम समीना अलवी ने कहा कि हर शहरी दरख्त लगाए और इस कुदरती वर्षे की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करे। यही वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन भी है। शाही कला लाहौर पाकिस्तान ब्लूम्स के ज़ेर एहतमाम लाहौर चैप्टर की तकरीब से खिताब में बेगम समीना अलवी ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है और हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालना होगा। बेगम समीना अलवी ने कहा कि लाहौर बागों का शहर है और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्तों की आबियारी हम सब का फ़र्ज़ है। मुकर्रीन ने कहा कि तंजीम का दायरा इख्तियार मुल्क के तमाम बड़े शहरों तक फैलाया जा रहा है और सब मिलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे।
मुल्क भर में एनसीओसी की मुश्तरका मॉनिटरिंग टीमों के जरिए 8 से 18 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट के शोबे में वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। जॉइंट मॉनिटरिंग टीम ने कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर दाखिली और खारजी रास्तों, बस स्टैंड, टोल प्लाजों और इंटरचेंजेस पर वैक्सीनेशन से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। सिर्फ वैक्सीन शुदा और कोविड सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को सफर करने की इजाजत दी जा रही है। मुहिम के दौरान वैक्सीन न लगवाने वाले गाड़ियों के अमले और मुसाफिरों को मौके पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज के लिए जिन इलाकों को चेक किया गया उनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लोचरा, ओकाड़ा, केमाड़ी, हाफिजाबाद, लाहौर, कसूर, मुल्तान, जेहलम, शाहकोट शामिल हैं। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज पर अमल दरामद के लिए अब तक कुल 12,073 मुआयने किए गए, जिसके दौरान 172 गाड़ियां जब्त की गईं और 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बरतानिया में तेजी से फैल रही है। बरतानवी वजीर माइकल गूव के मुताबिक दारुल हुकूमत लंदन में कोरोना के मरीजों में 30% में इसका पता चला है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक ओमिक्रॉन दिसंबर के वस्त तक बरतानिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वायरस बन सकता है। स्कॉटलैंड के वजीर ने खबरदार किया है कि बरतानिया में इन्फेक्शन का सुनामी आ सकता है। बरतानिया में नए कोरोना मरीजों की तादाद 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जहां जुमे के रोज 58,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दिन मनाया गया। दिन का मकसद सेहत की सहूलियात की बिला तखसीस फराहमी के बारे में शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुराद माली मुश्किलात के बगैर दुनिया भर के लोगों को सेहत की मयारी सहूलियात की फ्राहमी है, जो कि एहतियात, इलाज, बहाली और देखभाल पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मुमालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुस्तहकम तरक्की के अहदाफ में ये अज़म कर रखा है कि 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हदफ को मुमकिन बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए सेहत कार्ड का इजरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कौमी सेहत कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की, पहले तो समझ ही किसी को नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, जो कमजोर तबका था, उसको समझ आना शुरू हुआ इसका, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पख्तूनख्वा की। इंशाअल्लाह आप देखेंगे पंजाब में 1 जनवरी से वहाँ हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन, और 3 महीने में सारे पंजाब में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासिर किया, मगर पाकिस्तान में हुकूमती फैसलों और इक़दामात की बदौलत आलमी वबा पर काबू पाया गया, जबकि मुल्क भर में अवाम के लिए फ्री वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज से जारी है। इसी तरह मुल्क को पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए भी हुकूमत ने अहम इक़दामात किए। अफगानिस्तान में भी ये मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं हुआ, तो ये जुड़ के मिल के इकट्ठे ये कैंपेन की जा रही है। हमें पाकिस्तान के अवाम से, लोगों से आपकी कोऑपरेशन, आपकी मदद, आपकी शमूलियत चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती जैसे अहम शोबे के लिए हस्पतालों और तिब से वाबस्ता अफराद को भी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाना बेहद जरूरी है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल। जिला ओकाड़ा के अवाम भी सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब तक 12,000 मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। रनारा खुर से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट देखिए। सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए 8 अमराज के मुफ्त इलाज और मुफ्त फॉलो अप के लिए 2019 में 29% आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किए गए थे। बाद में इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल खानदान के सरबराह को सालाना 7,20,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। जिला उकाड़ा के दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों समेत 18 अस्पतालों में दिल और गुर्दों समेत ऐसे अमराज जिनके लिए अस्पताल में दाखिला जरूरी हो, मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। यहाँ पर सेहत सहूलत कार्ड की फराहमी शुरू हो गई है। हर शनाख्ती कार्ड सेहत सहूलत कार्ड पर रजिस्टर्ड है और हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसमें सर्जरी, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, मेडिसन, ENT, हर मरीज को हम इंटरटेन कर रहे हैं। उकाड़ा में 16 निजी अस्पतालों को सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए इलाज के लिए नामजद किया गया है। मेरी वालदा के डायलिसिस सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा में फ्री हो रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड पे इधर ऑपरेट हुआ है, इस बात पे हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये सहूलत फराहम की और इधर का स्टाफ बहुत अच्छा है। नामजद अस्पतालों की तरफ से मरीज के दाखिले की सूरत में एक दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन की दवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं। सेहत इंसाफ कार्ड तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक इनकलाबी मंसूबा है, जिसके तहत गरीब और बेसहारा अफराद सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़,
रीनाला खुर्द उकाड़ा। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तरानाइयों और अदब के मोती बिखेरती हुई कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। 4 रोज़ा 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 14 सेशंस और 7 किताबों की तकरीबन रौनमाई हुई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से फ़लसफ़ी, मुहक्किकीन, अदीब, शायर और फनकारों के अलावा ऑनलाइन मंदूबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मारूफ अदीबों और शोरा ने उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आखिरी रोज़ उर्दू नज़रियात, तहजीबी तनकीद, गज़ल की तश्कीलात, पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा, यार शायर अदबी अवार्ड, पाकिस्तान और औरत के अलावा पाकिस्तानी माशरे पर दिलचस्प सेशंस रखे गए थे। मारूफ मुसन्निफीन आरिफा सईदा ज़ोहरा, मुस्तनसर हुसैन तारड़, नूरुल हुदा शाह और जाहिदा हिना के अलावा दीगर शख्सियात ने अपने मकाले और मज़ामीन पढ़े, जिन पर सामईन ने भरपूर दाद दी। आर्ट्स काउंसिल में हर साल इस मेले का इनेकाद इस बात को जाहिर करता है कि ना सिर्फ पुराने ज़माने के लोग या जिसे कहते हैं कि जो पढ़ने वाले रह गए थे, ना सिर्फ वो बल्कि नौजवान नस्ल भी बड़ी तादाद में इन कॉन्फ्रेंसेस का रुख करती है। उर्दू के साथ साथ पाकिस्तान की बाकी ज़बानें जो बड़ी ज़बानें हैं, ख़ास तौर पे बलोची, पश्तो, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, इन ज़बानों पर भी सेशन रखे गए हैं। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो है वो पाकिस्तान पूरे में जाके फैलेगा और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस जो ये हो रही है 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ज़रूरी है अदब के लिए और उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए। उर्दू कॉन्फ्रेंस से जहां मुल्क और दुनिया भर में मुकीम अदबी शख्सियात को अपने ख्यालात के इज़हार का मौका मिला, वहीं यहाँ आने वालों को भी नामवर अदीबों और शोरा से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और मुल्क भर में बोली जाने वाली ज़बानों से मुताल्लिक़ जानने का भी मौका मिला। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों से मालूमात और आगाही फराहम करने के बाद आज इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें संजीदा तबके के अलावा नौजवानों ने भी भरपूर शिरकत की और इल्म और आगाही के खजीने समेटे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शुमाली पहाड़ी इलाकों और बाद शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया है। बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।